Good morning, students. So today we are going to discuss merits and demerits of HUF business. That day we discussed what is HUF business, what are its various features. Now we are going to discuss about the merits and demerits of HUF business. So let's discuss the first merit of HUF business. Bete, effective control of Karta is the first merit because only Karta has the absolute decision making power. So any conflict which may arise amongst the members, that is avoided. No other member has the right to interfere with the decision making of Karta. Yes, Karta can take their consultation, they can give their viewpoints, but the absolute decision making power lies with Karta. So, which means there is the decision making is prompt, quick, right? He does not need to consult any other, he does not need to take the consent of co-partners. He has full right over taking the decisions. So, which means effective control over the business is the plus point of this feature, right? Next, bete, continued business existence. So lack of continuity was one of the demerit of sole proprietorship. Sole proprietorship, that form of business organization where there is a single owner, right? So once that owner dies or he becomes lunatic or insolvent or he becomes, physically ill, in that case, business may come to an end. But in case of HUF business, bete, if Karta dies or Karta becomes lunatic, he becomes insolvent, right? Or he is suffering from any physical ailment, the business does not come to an end. Rather, the next eldest member, he takes the position of Karta. ठीक है, तो बिजनेस की जो कंटिन्यूटी है वो कर्ता की डेथ के कारण या इम्प्रिजनमेंट के कारण या कोई किसी भी और फैक्टर के कारण अफेक्ट नहीं होती. बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट. Yes, the next eldest member will become karta and he will now have the effective decision making power, right? So next है बेटे, next merit, limited liability of the members. So because sole proprietor में भी हमने पढ़ा कि sole proprietor की जो liability है वो unlimited होती है. So in that case, बेटे, you may find it difficult to start a business on your own. You may always have this worry in at the back of your mind कि ये ना हो कि नुकसान हो जाए और मेरे पर्सनल एसेट्स भी उस नुकसान को चुकाने के लिए बिक जाएं. तो ऐसा HUF बिजनेस में नहीं होता. यहाँ पे जो मेंबर्स है उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. इवन दो द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज अनलिमिटेड, बट जो को पार्टनर्स हैं their liability is limited to the share in the business. So which means they know about the risk which they have to undertake. ठीक है, अगर 10 लाख रुपए की उनकी इन्वेस्टमेंट है तो उनको पता है कि उनका रिस्क जो है 10 लाख तक का ही है. So here the risk is well defined, precise, exact है. ठीक है, तो लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ये रिस्क डिफाइंड नहीं होता. So this is one of the merit of the HUF business. Next is increased loyalty and cooperation. So बेटे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके मेंबर्स मिलके काम कर रहे हैं, मिलके बिजनेस रन कर रहे हैं. सो जब भाई बहन या फादर सन डॉटर सब मिलके काम करते हैं तो देयर इज अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी.
You compare this with partnership form of organization. पार्टनरशिप में ये जरूरी नहीं है कि दो ब्रदर्स ही पार्टनर्स हो. They may be two unknown persons or 3 or 4 unknown persons. They might be cousins. They might be, फ्रेंड्स. सो वहां पर इतनी जो लॉयल्टी की सेंस है वो नहीं आती है. लेकिन एचयूएफ फैमिली में क्या होता है बच्चे, यहाँ पर सारे भाई मिलके काम कर रहे हैं, तो एक सेंस ऑफ लॉयल्टी होती है. ठीक है, अगर कोई उनका बिजनेस ग्रो करता है तो इट इज लिंक्ड विद द अचीवमेंट्स ऑफ द फैमिली. तो मिलके ये कह सकते हैं हाँ हमारी फैमिली ने ये अचीव किया है. सो इस तरह से आपस में कोऑपरेशन जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम मेहनत करेंगे तो हमारी फैमिली का नाम बढ़ेगा, हमारे भाई बहन ये सब तरक्की करेंगे. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड अगर पार्टनरशिप में है तो देयर में बी द फीलिंग ऑफ राइवलरी, देयर में बी द फीलिंग ऑफ जेलसी. सो अगर एक पार्टनर के पास पर्सनल एसेट्स ज्यादा है, दूसरे के पास पर्सनल एसेट्स कम है, तो हो सकता है वो पार्टनर जो है उसको चीट कर दे, फ्रॉड कर दे, क्योंकि यहाँ पे लॉयल्टी की सेंस नहीं है. लेकिन फैमिली बिजनेस में देयर इज ऑलवेज द इंक्रीज्ड सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन. ठीक है बच्चे. So these are the merits of joint Hindu family business. Let's see what are its demerits or limitations. So first limitation which is mentioned in your book, that is limited resources. So better because all the family members together form HUF business, so ancestral property is the base of the business. उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, पैसा है, जायदाद है, घर बार है, जो भी है, वो सब बिजनेस की कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनते हैं. सो जितनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उतना ही हमारे रिसोर्सेज हैं. सो इसका मतलब कोई अगर मेंबर ऐड होता है इसमें, जैसे मैंने बताया था बाय बर्थ, जैसे ही किसी भी पर्सन का बर्थ होता है उस फैमिली में, वो इस फैमिली बिजनेस का पार्ट बन जाता है. तो बेटे इससे क्या हो रहा है, मेंबर्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन रिसोर्सेज उतने ही रह रहे हैं. नाउ कंपेयर इट विद पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. आपके पास चॉइस है, आप एचयूएफ बिजनेस सेटअप करना चाहते हो या पार्टनरशिप चूज करना चाहते हो. तो पार्टनरशिप में क्या होगा, अगर दो पार्टनर्स रन कर रहे हैं और आपको लगता है कि यू वांट टू एक्सपैंड बिजनेस, आप नया पार्टनर एडमिट कर लेते हो अपने बिजनेस में, तो जो थर्ड पार्टनर है बेटे, ही विल ब्रिंग इन कैपिटल. तो आपकी जो रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है दैट विल बी सॉल्व. ऑन दी अदर हैंड बेटे, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. दे डिपेंड मेनली ऑन दी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. राइट. नेक्स्ट लिमिटेशन बेटे इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता. The karta is burdened not only with the responsibility of decision making and management of the business, but he also suffers from unlimited liability. What is the meaning of unlimited liability? That is, personal assets can be used to pay off business debts. ठीक है. तो अगर हम कर्ता के व्यू पॉइंट से देखें तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है बिजनेस के डेट्स को रीपे करने के लिए. ठीक है. Why Karta's liability is unlimited? Because he is the one who is taking the major decisions. तो उसके पास अगर अथॉरिटी ज्यादा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होनी चाहिए. राइट. नेक्स्ट बेटे, डोमिनेंस ऑफ कर्ता. नाउ the karta, because he is he has absolute decision making power, his decisions may not be acceptable to other members of the family. See, there is always a generation gap. If you are running an HUF business, your father is karta, and you are the member, your father, your uncle, your cousins, and you are members of co-partners of HUF business. So now with the changing times, your ways of doing things may be different, right? But the karta is not listening. You want to introduce certain change in the family business, but karta, because he belongs to older generation, he is not agreeing with your viewpoint. You are also not agreeing with their viewpoint.
but ultimate decision making power is of कर्ता. सो कर्ता ये कहेगा कोई बात नहीं, डिसीजन तो मैंने लेनी, मैं जैसे करता हूँ वैसा ही होगा. ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन बेटे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, स्पेशली इन टुडेज वर्ल्ड वेयर यंगर जनरेशन इज सो वेरी इम्पेशेंट. दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू द एल्डर्स. दे थिंक दे नो इट ऑल एटीट्यूड है उनका, वी नो इट ऑल. ठीक है, सो ये जो नो इट ऑल एटीट्यूड है, दिस में लीड टू द ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली यूनिट. ठीक है, तो ये HUF बिजनेस इसके कारण काफी अब कम पॉपुलर है. These are not very popular these days now, right? Next, बेटे limited managerial skills. अब कर्ता ने सारी डिसीजंस लेनी है, लेकिन कर्ता सोल प्रोप्राइटर की तरह कर्ता भी हर एरिया में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता. So he may take certain decisions which may not be wise, जिसके कारण बिजनेस को लॉस सफर करना हो सकता है. ठीक है, तो बेटे इंडिया का ही ये टाइप ऑफ बिजनेस है, लेकिन ये अब काफी कम पॉपुलर हो गया है क्योंकि इंडिया में जॉइंट हिंदू फैमिलीज जो है वो कम होती जा रही. इज इट क्लियर बेटे? Now, so far we have discussed sole proprietorship and joint Hindu family business forms of organization, right? Now, sole proprietor में हमने जब demerits discuss किए, तो one of its biggest drawback was that of limited resources and limited managerial ability of sole proprietor. So, if you want to overcome both these drawbacks, that is, you want to add resources to your business, you want to expand your business, you want to run a higher business, but your capital is limited, and also your managerial ability is limited. You want a helping hand who would help you in making decisions, who is specialist in other fields. Okay, so you can think of partnership as another option. So this is the third form of business organization which we are going to discuss, partnership. Okay, so what is a partnership? Simple terms में partnership की बात करें तो बेटे जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस को रन करते हैं, इकट्ठे मिलके कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, इकट्ठे कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रॉफिट्स शेयर करते हैं, लॉस शेयर करते हैं, डिसीजन मेकिंग शेयर करते हैं और बिजनेस को मिल के चलाते हैं. ठीक है, तो दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप. राइट, नाउ पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई एक्ट नहीं बना हुआ इंडिया में. HUF के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, जिसकी प्रोविजंस आपको फॉलो करनी होती हैं. अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस रन करना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट. इस एक्ट ने पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन किया है? So according to this act, bete, partnership is the relation between the persons who have agreed to share the profits of the business. ठीक है, पार्टनरशिप एक वो रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जब उन्होंने आपस में अग्रीमेंट कर लिया कि ये जो बिजनेस हम रन कर रहे हैं इसके जो प्रॉफिट्स है हम आपस में शेयर करेंगे. ठीक है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस व्हिच इज कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. नाउ व्हाट डज दिस लाइन मीन? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. So let's see, bete, let's take an example. Three partners, three persons, A, B, C, say they are friends and they have agreed to form a partnership. इन्होंने आपस में
अग्रीमेंट किया कि हम ऐसे करते हैं, हम 15-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हम ये चलो एक शॉप खोलते हैं और इस शॉप को जितना भी प्रॉफिट होगा वो हम वन थर्ड डिवाइड कर लेंगे, अगर लॉस भी होगा तो वो भी इक्वली हम डिवाइड कर लेंगे। अब ए ने कहा कि मेरे से आप 15 लाख रुपए तो ले लो, लेकिन क्योंकि मेरा अपना एक इंडिविजुअल बिजनेस भी है, मैं उसमें काफी बिजी रहता हूँ, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेक पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस बिजनेस। ठीक है, ये जो हमने फर्म सेटअप की है, 15 लाख रुपए तो मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं इसको एक्टिवली आपके बिजनेस में कोई भी काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस केस में बी और सी कहते हैं ठीक है, हम दोनों मिलके काम कर लेंगे और तेरे को तेरा शेयर हम दे देंगे। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है, ये क्या बात होगी, आइदर द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल, एक बात ए बी सी तीनों मिलके काम कर रहे हैं, और दूसरी केस एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, बी ने कहा मैं दोनों के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, या बी और सी इकट्ठे मिलके तीनों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, ये भी पार्टनरशिप ही है। So it is the relation between the persons who agree to share the profits of the business, which is carried on by all, or any one of them acting for all. ठीक है, this is partnership, right? So बेटे पार्टनरशिप के लिए क्या क्या पार्टनरशिप के हम फीचर्स क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज अ very thorough topic. Here we will be discussing what are the features, merits, demerits of partnership, what are the various types of partners, and what are the various types of partnership, what is partnership deed, then what is partner, how is registration of partnership done, and what are the benefits of the registration of partnership. So it's going to take a lot of time coverage of this topic, which is partnership. So if you are clear with the meaning of partnership, I will be proceeding further. If anyone is having any doubt, I'm waiting. Right, I can see one message in the chat box. Let me see. In partnership, the profits left would be very less. Who tells you? But that depends upon the scale of the business. Because you have added resources, तीनों ने अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, लेट अस से अगर ए के पास 15 लाख रुपए है, तो उसका जो आरओआई है, आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेट्स से उस 1% है या 2% है, जो भी है, लेट्स से उसको 15,000 पर मंथ रिटर्न आ रही है। तो अगर ए बी सी तीनों ने मिलके 15 लाख इन्वेस्ट करके ईच, यानी कि 45 लाख इन्वेस्ट किए, इसकी आरओआई भी सेम है परसेंटेज में, तो इनको कितना मिला, 45,000। 45,000 gets distributed amongst 3, ठीक है, तो 15 15 15। इज इट क्लियर? क्योंकि बेटे रिसोर्सेज ऐड हुए हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड यस, व्हेन यू चूज फॉर पार्टनरशिप यू विल हैव टू मेक योर डिसीजन। जब भी आप एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चूज करते हो तो आपको फैक्टर्स माइंड में रखने होते हैं। यस, इफ यू आर रेडी टू शेयर योर प्रॉफिट्स, only then partnership is suitable for you. If you are not ready to share your profits, प्रॉफिट शेयर जरूर होंगे हमेश, हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट्स कम रह जाएंगे, हाँ प्रॉफिट्स शेयर होंगे, तो वो तो होने ही है, क्योंकि आपका जो रिस्क है वो भी तो शेयर हो रहा है ना। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स डिस्कस द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट फीचर इज बेटे फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसी होती है पार्टनरशिप? बेटे पार्टनरशिप, एज आई टोल्ड यू, इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. So partnership comes into existence through a legal agreement. पार्टनरशिप फॉर्म करने के लिए
आपको एक लीगल अग्रीमेंट करना पड़ता है सारे पार्टनर्स को मिलके। उस अग्रीमेंट में क्या होता है? इट कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशंस of the partnership, the ratio in which profits will be shared, ठीक है, the capital contributed by all the partners, ये सारे जो decisions हमें टाइम टू टाइम लेने पड़ते हैं, that will be discussed in this agreement। एक हम अग्रीमेंट फॉर्म कर लेंगे ताकि कल को किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कितना प्रॉफिट का हिस्सा हमने लेना है, कितनी ड्राइंग्स हमने लेनी है, यानी कि पर्सनल यूज के लिए कितने पैसे विथड्रॉ करने हैं, ये सारी चीजें उस अग्रीमेंट में हम पहले से ही डिस्कस करके रख लेंगे। ठीक है, सो पहला पॉइंट मैंने फॉर्मेशन के लिए क्या बताया बेटे? इट इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर मैंने आपको ये बताया पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू अ लीगल अग्रीमेंट in which all the terms and conditions related to the partnership, the ratio in which profits will be shared, the ratio in which capital will be contributed, and everything else, salary of the partners, drawings of the partners, that will be mentioned in that agreement. Secondly, बेटे, partnership, वही business हम partnership में start कर सकते हैं which is lawful। अगर आप कोई अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो और बोलो हम पार्टनरशिप में कर लेते हैं, तो पार्टनरशिप जो टर्म है वो अनलॉफुल बिजनेस के ऊपर अप्लाई नहीं होती। चार जने मिलके कहते हैं चलो हम यहाँ से चोरी करते हैं और हम चारों और चोरी करके और जो पैसा आएगा वो आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, उसको बेच के पैसा आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ऐसी पार्टनरशिप कर लेते हैं। नो बेटे, दैट इज नो पार्टनरशिप। The business has to be lawful and it must be done with the motive of earning profit। आप चार लोग मिलके कहते हो कि आपके पास पर्सनल सेविंग्स पड़ी हुई है, तो आप ऐसे करते हैं कि चलो हम ऐसे करते हैं, कोविड के पेशेंट्स को हम जो जो उनको दवाइयां चाहिए वो हम चारों जने मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं, चारों अपनी सेविंग्स इकट्ठी करते हैं और दवाइयां लेके आते हैं और कोविड के पेशेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये charity hai, it is not for the motive of earning profit, so this will again not be called as partnership। For partnership the business must be lawful and it must be run with the motive of earning profit। क्या बेटे? नेक्स्ट बेटे आती है बात liability की। liability of all the partners is unlimited। ठीक है, liability of partners would be unlimited, which means the personal assets of the partner can be used to repay the debts। It is not the liability is not limited to the capital contributed by the partner। आप A, B, C ने 15 लाख ईच कंट्रीब्यूट किए, कल को बिजनेस डूब गया, ठीक है, बाहर कर्जेदार आपके बाहर आके खड़े हो गए, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये मशीनें बेच के सारा कुछ उतार दिया है, अब हमारे पास और पैसे नहीं है। ठीक है, अभी भी कर्जेदार बाहर खड़े हुए हैं, तो इन दैट केस आप अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। यू हैव टू सेल ऑफ योर पर्सनल एसेट्स टू पे ऑफ द बिजनेस डेट्स। ठीक है, तो अगर बिजनेस के फंड्स सफिशिएंट नहीं है बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, तो आपके पर्सनल एसेट्स यूज हो सकते हैं उनको पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, दिस वाज द वन थिंग that liability of all the partners is unlimited। Secondly बेटे, the partners have the partners liability is joint as well as individual। They are jointly liable as well as individually liable for the payment of debts। ठीक है, joint responsibility का मतलब क्या है? Let's see, 3 partners हैं और वो 1/3 रेशो में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं।
तो इन दैट केस अगर उनका बिजनेस जो है वो लॉसेस में चला जाता है तो वो लॉसेस भी इसी रेशो में बियर करेंगे। लेट्स से उनका 15 लाख का नुकसान हो गया, 15 लाख कर्जेदारों को देना है, बिजनेस एसेट्स बेच के भी 15 लाख का भी नुकसान उनका पड़ा है, देने वाला कर्जा पड़ा है। तो इन दैट केस ईच A, B, C each will contribute 5 lakh. This is known as joint responsibility, joint liability. ठीक है, all the partners are jointly responsible for the debts, right? They are jointly responsible for the debts and they contribute in proportion to their share in the business. कितना contribute करेंगे? In proportion to their share in the business. ठीक है? So, secondly, बेटे, they have individual responsibility also. Individual mean each individual can be held responsible for paying the debt of the business. Each individual, each partner can be individually held responsible. What does this mean? Taking the same example, 15 लाख आपका टोटल कर्जेदारों को देने वाला पड़ा है, तो 5-5 लाख हिस्सा आता है, लेकिन ये कहता है कि मेरे पास सिर्फ 2 लाख रुपए हैं इस टाइम पे, ठीक है, लेकिन देना कितना है? 15 लाख। तो और बी और सी के पर्सनल एसेट्स ए के पर्सनल एसेट से अगर ज्यादा है, या लेट्स से बी भी कह देता है कि नहीं मेरे पास भी 5 लाख से ज्यादा पैसे नहीं है, तो उस केस में बेटे 5 इसने कंट्रीब्यूट किया, 5 इसने, 2 इसने, 12 लाख हुए, लेकिन चाहिए कितने? 15 लाख, 3 लाख शॉर्टेज है। अगर सी के पास पर्सनल एसेट्स ज्यादा है तो सी विल बी लायबल टू पे 8 लाख रुपीज out of his personal assets. 8 will be paid by C, 5 lakh will be paid by B, and 2 lakh will be paid by A. But afterwards, C will have the authority to recover 3 lakh rupees from A. इस टाइम पे A के पास पैसे नहीं है, C के पास है, और C को क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि जो प्रोविजन है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, वो ये कहती है कि लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज जॉइंट एज वेल एज इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल लायबिलिटी का फीचर जो है वो सी को मार रहा है, वो सी को तंग कर रहा है, तो इसके चलते हुए सी जो लॉ कहता है बेटे वो तो करना ही पड़ेगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यही कहता है कि अगर एक पार्टनर के पास पैसे नहीं है देने के लिए और दूसरे के पास है, तो उसकी भी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कर्जेदारों को पैसा देना पड़ेगा। वंस they have paid off, afterwards he can recover this amount from A. उसके बाद वो A से रिकवर कर सकता है। यहाँ पे एक्चुअली बेटे क्रेडिटर को कवर किया गया है कि पार्टनरशिप जो है तीनों पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं और उनके पैसे नहीं डुबाने हमने, आपके पास पर्सनल एसेट्स हैं, वो आपने हो सकता है बिजनेस के एसेट्स ही बनाए होंगे, तो आपको अपने कर्जेदारों को पैसे देने हैं, उनको तो भुगता होगा, उसके बाद आप आपस में अपना सेटल करते रहो। ठीक है, दिस इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक बेटे किसी को कोई डाउट है? यू कैन